Hello everyone and welcome to Magic Bricks webinar series. This is a platform for consumers to interact with industry experts. My name is Neha Nagpal and I'm your moderator for the session today. I'd like to introduce today's guest, Mr. Pradeep Agarwal, co-founder and chairman, Signature Global Group. The topic of today's session is affordable housing. Where is the supply? Where is affordable housing in India basically? To introduce Mr. Agarwal, he has got a rich experience of around 2 decades in financial capital market and commodity market. Mr. Pradeep Agarwal brings motivation and emphasis on professional approach ethically. His in-depth knowledge of securities market and financial services led him to diversify the group business from stock broking and arbitrage to commodity broking, all fund-based activities and advisory services. He ventured in the real estate business under the brand name Signature Global, which is working on association with several realty projects across India in the coming years. Within a span of few years, his company has already launched successful projects of global standards in Delhi NCR with construction in full swing. I also welcome E. Jayashree Kurup, Head Editorial Magic Bricks. She has been a business journalist for over 2 decades with Times of India, the Economic Times, and the Financial Express. She forayed into research in 2002. She is a regular guest columnist with a number of established media, including the Times Group and others. Over to you, Jayashree. Thank you, Neha. Welcome to our webinar, Pradeep Agarwal, and all the consumers who are joined in. We've been talking about RERA and GST, 2 critical reforms that have been happening, but the overarching effort has been to get every Indian family a home by 2022. The Pradhan Mantri Awas Yojana, the Prime Minister's dream that every Indian family should have a home that is worth living in. Pradeep Agarwal has been working in the field of affordable housing. Like Neha said, he has diversified from his earlier ventures. But here, Pradeep, one of the things that we would like to know is, let's pick up what Suresh from Bangalore says. How can a public-private partnership model be the base for development of affordable housing projects in view of the high land cost? What has your experience been? And it would be like a benchmark for others who are venturing into this. Thank you, Jayashree. Thank you, sir. First of all, तो जयश्री इसमें एक चीज देखिए, पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये एक अरेंजमेंट है ऐसा जिसमें आपको उस काम को प्रॉपर एक टाइम मैनर में करना है. आज प्रॉब्लम इंडस्ट्री की ये नहीं है कि लैंड रेट कहाँ पे ज्यादा है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पे प्रॉपर नहीं आ पा रही है. आई थिंक जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये है कि जो डेवलपर है वो इन टाइम काम डिलीवरी नहीं दे पा रहे और जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का वो कहीं ना कहीं शेक हो गया है. तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऐसा पूरे इंडिया में बहुत सारी हमने ऐसे जगह देखी है जहां पे लैंड प्राइसेस आज जहां पे जो प्रीमियम सेगमेंट है उसकी डिमांड कम होने की वजह से लैंड पार्सल ठीक रेट पे अवेलेबल हैं. एंड अगर आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को प्रॉपर रखते हैं तो एक रिजनेबल रेट पे उसे भी बना सकते हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड कॉस्ट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि उसे एड्रेस ना किया जा सके. तो आपको लगता है बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्ट्स टाइम पे कैसे खत्म किया जाए और सही टाइम पे डिलीवरी कैसे दिया जाए? राइट. ओके. तो अब we've got a question from Santosh of Chennai. Since the time infrastructure status has been granted to affordable housing, how do you see the private sector's interest in it? आपको क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस से फर्क पड़ा है? देखिए, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं. इसका नो डाउट एक इफेक्ट पड़ा है, लेकिन अभी उसको ग्राउंड पे उतरने के लिए कुछ टाइम चाहिए. अभी इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडरस्टैंड कर रही हैं. एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग को अभी रियल एस्टेट से डिफरेंट नहीं देख पा रही हैं.
मुझे लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिला है तो जो गवर्नमेंट है अगर उनको पुश करे कि कुछ सर्टेन परसेंटेज उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को लैंड करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो मेन जो ट्रबल है कि उनको जो फंड्स अवेलेबिलिटी है वो हायर रेट्स पे है, तो कहीं ना कहीं कम रेट पे अवेलेबिलिटी हो पाएगी। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आने वाले टाइम में जरूर ऐसा हो पाएगा। अभी तक ये नहीं हुआ है। देखिए, अभी तक ऐसा एग्रेसिवली नजर नहीं आया है। अप्रोच बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन एग्रेसिवली कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है कि जिसमें लगे कि हाँ वेरी फर्स्ट डे से कर सकते। Right. We've got R.K. Singh from Delhi. What are your demands from the government which can make affordable housing scheme more effective? देखिए, सबसे पहले तो हमारी डिमांड चल रही है कि जो जीएसटी है वो रियल एस्टेट में इसको जो प्रीमियम सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को इक्वल कर दिया गया है। इससे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो सर्विस टैक्स था वो एग्जेम्प्ट था। तो अभी हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जो कंज्यूमर है उसको, हर परिवार को अगर एक घर देना चाहते हैं तो जो जीएसटी है उसको कम से कम 6% पे लेके आइए, जिससे उसको सीधा लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए का दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में उसे फायदा हो सके। और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट पॉजिटिवली इस तरफ देख रही है और बहुत जल्दी शायद फाइनेंस मिनिस्टर तक हमारी बात पहुंच जाएगी कि लगभग 6% के आसपास इसे जीएसटी लगाइए, जिससे जो बिल्डर को पास ऑन करना है आने वाले टाइम में, जो इनपुट उसे क्रेडिट मिलने वाला है उससे लगभग वो इसे नल एंड वाइट के बराबर हो जाएगा उसके ऊपर टैक्स। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए टैक्स जीएसटी तो कम से कम इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। राइट। एंड अभी फिलहाल कंज्यूमर्स को जीएसटी लग्जरी रेट्स पे ही देना है। राइट। Consumers, very important point that Pradeep ji has made, that there is a lobbying with the government telling them that like service tax was affordable housing was exempt from service tax earlier, can you exempt housing from a premium GST rate and bring it down to a 6% rate, so that the input credit that the developer gets will be offset, and the developer, neither the developer nor the consumer has to pay more, and it will become an attractive sector again. In the meantime, the issue has been raised, and he's hopeful that the finance ministry will take it up soon. Pradeep ji, there is Savita from Lucknow who says, the government entrusts the developers to enable home buyers to encash the subsidy benefits under the Pradhan Mantri Awas Yojana. How can developers help? CLSS तो गवर्नमेंट ने दिया है, कंज्यूमर्स को दिया है, आप एक डेवलपर हैं, आप इसमें बिल्ड कर रहे हैं इस सेक्टर में, आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे? एक्चुअली देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है सीरीज, वो एक इसमें मील का पत्थर साबित होने वाली है। रीजन इज दैट कि आज जो लोग जिनके पास जो मेट्रो सिटीज में या जो भी टियर 1 या 2 सिटीज में रहते हैं, उनकी जो सैलरी रेंज है मोस्टली लोगों की 20,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच में। तो ऐसे केस में वो अपनी ईएमआई को कम से कम कर पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आज एक नॉर्मल जो फैमिली है जिसकी हाउस होल्ड इनकम लगभग 6 लाख रुपए है, उसके ऊपर लगभग उसे 6.5% की सब्सिडी मिल रही है। तो ऐसा एक उसमें जो बेनिफिट आ रहा है वो लगभग 2,67,000 रुपए का उसको 20 साल के होम लोन पे आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए। सिग्नेचर ग्लोबल भी इस जुलाई मंथ एंड से एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, जिसमें जो विद्या बालन है वो कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जिसमें विद्या बालन ये बता रही है कि अगर आप कोई भी इंडिया में कहीं पे भी अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर घर लेते हैं तो उनको सब्सिडी मिलेगी। तो मुझे लगता है जो हमारा ये कैंपेन है पूरे के पूरे देश में एक अच्छा एक वो कर सकता है कि आने वाला रेगुलेशन उसमें नजर आ सकता है। राइट। हमारे पास एक क्वेरी आई है राजीव से, ये मुंबई से हैं। He says, how do you see the center scheme to provide housing for all by 2022? What are the problems that developers are facing in launching affordable housing scheme? एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंड प्राइजेस, जैसा भी आपने रिसेंटली जो डिस्कस किया कि लैंड प्राइजेस और लैंड पार्सल्स, और एक
इससे भी जो एक नेक्स्ट लेवल पे कंसर्न है उसमें वन विंडो जो क्लियरेंस है। तो फर्स्ट अगर हम लैंड पार्सल्स की बात करें या लैंड प्राइजेस की बात करें तो वो नो डाउट खास करके मेट्रो सिटी में, जहां मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में या दिल्ली एनसीआर में जो लैंड प्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त काफी ऐसे यानी इवन प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछले 1.5 मंथ बैक एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने पीएसयूज को और जितने भी रेवेन्यू लैंड्स हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन की है कि जिन लोगों के पास भी एक्स्ट्रा लैंड है वो बताएं जिसपे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जा सके। इवन मुंबई में भी जो गवर्नमेंट है वो सॉल्ट पेन लेक पे इस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक प्रोविजन बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे खास करके मेट्रो सिटीज में जो आज अनरेगुलाइज कॉलोनी जहां पे स्टैब्लिश हो रही हैं उनको रोका जा सके और लोग एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज में रह सके। तो मुझे लगता है कि मेन चैलेंजेस जो सबसे पहला है वो लैंड पार्सल है, और उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है लोगों के अंदर अवेयरनेस का प्रॉपर नहीं होना, जिससे उनको ये नहीं पता चल पाता है कि जिस घर को वो खरीद रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है या नहीं है। तो बिल्डर के पास जाके अगर वो बिल्डर ये बताता है कि इसको एरिया वाइज या अफोर्डेबल हाउसिंग में है तो वो उसे मान लेता है। मुझे लगता है शायद एक चीज उसे करेक्ट जरूर करनी चाहिए कि वो जरूर बिल्डर से अपने पूछे, डेवलपर से, कि ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो मुझे लगता है और ज्यादा उनको सुविधा होगी। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो ये टाइम है, नॉर्मल जो प्रीमियम हाउसिंग है उस प्रीमियम हाउसिंग के अंदर इस वक्त बिल्कुल डिमांड नहीं है। उसको देख के मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, और मैं तो पर्टिकुलरली इसे पॉजिटिव वे में देख रहा हूं। प्रदीप जी, 5 चीजें ऐसे बताइए जो गवर्नमेंट के करने से अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ सकता है, जो किया है और जो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है आज एक जो डेवलपर को लेके एक नेगेटिव माइंडसेट जो कंज्यूमर का हुआ है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जो बिल्डर कह रहा है उसे वो करेगा। मुझे लगता है जो रेरा है वो भी इसमें काफी ज्यादा एक बड़ी बात बनेगी। दूसरी बात, जो जितने भी टैक्सेस इसकी सप्लाई, मटेरियल सप्लाई में जो लग रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनको कहीं ईज आउट कर पाए, उनको कुछ कम कर पाए, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी उसको अगर वो 6% या उससे भी ज्यादा कम पे कर पाए तो ये एक बड़ा एक अचीवमेंट होगा। तीसरा, सबसे बड़ा बात कि वन विंडो जो क्लियरेंस, काफी दिन से ये बातचीत होती है कि वन विंडो क्लियरेंस क्या सिस्टम है। अगर आज मैं कोई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में किसी फाइल को किसी भी स्टेट की पॉलिसी में लगाता हूं तो लगभग मुझे लाइसेंस लेने तक 1 साल लग जाता है और उससे भी ज्यादा। तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उसको 90 डेज में या 120 डेज के अंदर अगर फाइल को क्लियर करके दें तो ये एक ऐसी चीज है जो बन सकती है और अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को दिए जा सकते हैं। एंड एक और चीज इसके अंदर है, खास करके जहां अभी जैसे इससे पहले पॉइंट पे डिस्कस किया कि लैंड की अवेलेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसे स्टेप उठाए जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट लैंड की कोई अवेलेबिलिटी कराए, या दिल्ली जहां पे अभी अभी रिसेंटली लैंड पूलिंग के ऊपर काफी बड़ा काम हुआ है, गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर कोई ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लाए जिससे खास करके दिल्ली जैसे शहर में भी लोगों को मकान मिल पाए, और बॉम्बे में भी जो गवर्नमेंट के पास फाइल पेंडिंग है सॉल्ट पेन लेक वगैरह की, उसके अंदर कुछ वो वर्कआउट करे। तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनके ऊपर गवर्नमेंट वर्कआउट करे तो खास करके मेट्रो सिटीज में, दिल्ली एनसीआर सबर्ब्स में, यहाँ पे एक काफी बड़ा लैंड पार्सल लोगों को मिल सकता है जिससे लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में और देने में काफी सहायता मिलेगी। ओके, एंड मीना सिंह, जो आपने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू बाय एन अफोर्डेबल हाउस इन प्लेसेस लाइक मुंबई, I think Pradeep ji has answered that. If the land is made available, if input materials, if they can also get some kind of subsidies, if in terms of taxation,
these are some of the measures, and he's mentioned a few more. If that is these principles are put into play, you will be able to find an affordable house in even places like Mumbai, where land costs are very high. Pradeep ji, Sarit Pune se पूछते हैं, which cities have maximum number of supply in affordable housing? Would you be able to answer this? Yeah, actually मुझे लगता है कि दिल्ली NCR इज द मेन प्रोमिनेंट एरिया इस वक्त बना हुआ है, खास करके हरियाणा, जिसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी है हरियाणा की, वो एक मॉडल बनी हुई है पूरे देश के लिए। तो और जो महाराष्ट्र है उसने भी इस पॉलिसी को के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया है, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पे। तो मुझे लगता है इस वक्त अगर इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की हम रियल सेंस में बात करें तो हरियाणा इज द ओनली स्टेट जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत सीरियसली लिया। आप उसके प्रिंसिपल्स समझा देंगे यूजर्स? हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहले उसमें प्राइस को रैशनिंग किया गया है, जहां पे अफोर्डेबल, जिसमें प्राइस के अंदर आपको 4000 रुपए कारपेट एरिया के ऊपर ही रेट उसे सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सेल कर सकते। कुछ FAR नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है, जो नॉर्मल प्रीमियम हाउसिंग के अंदर अगर FAR नॉर्म्स 1.75 का है तो उसको 2.25 किया गया है। कुछ उसमें कमर्शियल एरिया है जो वहां डेली नीड्स की जो आइटम है, शॉप्स हैं, उनको प्रोवाइड कराया गया है। तो इस पूरे के पूरे बकेट को ऐसा बनाया गया है जिससे जो डेवलपर है वो भी उसे करने में सक्षम है, और दूसरा गवर्नमेंट को बिना किसी सब्सिडी के ही अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को मुहैया कराने के लिए एक साधन मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मुंबई जैसे शहर में भी ऐसी कुछ पॉलिसी बनाई जाए जिसपे खास करके TDR, जो सबसे बड़ा वहां पे कॉस्ट होता है, फंजीबल और TDR की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, उसमें कुछ FAR नॉर्म्स को वहां पे रिलैक्स किया जाए, और तो कुछ चीज शायद मुंबई जैसे शहर के अंदर जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग देख रहे हैं तो वहां पे भी उन लोगों को मुहैया कराई जा सकती है। Right. Cecil from Chennai says, is it possible to buy an affordable house in good locations, or an affordable house buyer has to compromise on amenities and good locations? आपको क्या लगता है? Because land is so expensive, क्या हमेशा पेरिफेरी में ही मिलेगा? देखिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि आज अगर जितनी भी मेट्रो सिटीज में देखें तो अब जो सिग्नेचर ग्लोबल है नेक्स्ट प्लान कर रहा है कि मुंबई की मेन एरियाज में हम वहां पे लगभग 500-600 स्क्वायर फीट के मकान वहां पे लोगों को मुहैया कराएं। एक मेन इसमें बात समझने की जरूरत यह है कि आज सारी एमिनिटीज के साथ हर उस मकान को देना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो जरूर मुहैया कराई जा सकती हैं, और उसी पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो मेरा जवाब इनको यही होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक एमिनिटी जो चाहिए वो जरूर हम उन अफोर्डेबल हाउसिंग में मुहैया करा रहे हैं। Right. Actually, Pradeep, it's worth halting here and talking about this question that he's asked. अभी तक ये हुआ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसे एरियाज में होते थे कि बहुत शहर से बहुत दूर है, ट्रांसपोर्ट लिंक्स आते नहीं थे, घर बन गया, वहां आने जाने की सुविधा नहीं थी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज वहां आई नहीं थी, और ये भी होता था कि वहां पे स्कूल्स, हॉस्पिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था। जब आप कहीं बनाते हैं तो आप क्या what are the things that you take care of so that your consumers have a good life? देखिए जयश्री, सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल किसी भी जब लैंड पार्सल के ऊपर काम करता है तो लोकेशन जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है। अभी भी जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग हमने लॉन्च की हुई है वो सब प्रोमिनेंट जगह पे हैं। गुड़गांव जैसे मेन पॉश इलाके में जहां पे आप 2 BHK फ्लैट 60 से 70 लाख रुपए के नीचे जहां मिल नहीं सकता, वैसे एरियाज में लगभग हमने 25 लाख रुपए में उन घरों को मुहैया कराया है। मुझे लगता है कि हम इस चीज के लिए बिल्कुल फोकस्ड हैं कि हमें किसी भी आउटकट्स में नहीं जाना है, उस मेट्रो सिटीज के या तो अंदर या बिल्कुल उनसे जुड़े हुए एरियाज में ही रहना है, जिससे उसे रियल सेंस में अफोर्डेबल बनाया जा सके। अफोर्डेबल का मतलब जंगल में मंगल होना नहीं है। हमारा मेन फोकस एरिया है कि या तो हम मेट्रो सिटीज में दें और या बिल्कुल जुड़े हुए जो मेट्रो सिटीज से जुड़े हुए एरिया हैं उनमें दें, ना कि उनसे इतने फार हो जाएं कि वहां तक ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन हो और ना ही कोई जाने का साधन हो।
तो मुझे लगता है कि सिग्नेचर ग्लोबल ने तो इन चीजों पे काफी फोकस किया है। इवन अगर जैसा मैंने भी आपको बताया कि मुंबई में भी अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हम मेन मेट्रो सिटीज में मेन मुंबई में प्लान कर रहे हैं, इवन पूना भी हम प्लान कर रहे हैं, तो मेन जो एरियाज है वहां के वही हमने ट्रेस आउट किए हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो आप देख ही सकते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब मेन एरिया में मेन पॉश लोकेशंस के अंदर लोकेटेड। राइट। टीना कहती हैं कि ये दिल्ली में इनका एक मकान है, मगर ये अफोर्डेबल हाउस मुंबई में खरीदना चाहती हैं। इनकी एलिजिबिलिटी है बिकॉज शी ऑलरेडी ओन्स अ हाउस बट इन अ डिफरेंट सिटी। देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत सिंपल वे लगाया है कि आज अगर स्टेट की पॉलिसी पर्टिकुलर, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उस लैंड की पॉलिसी में अगर ये मेंशन है, जैसे हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में मेंशन है कि अगर आपके पास अपना घर है और वो गवर्नमेंट से सब्सिडाइज किया हुआ है, लाइक डीडीए या ऐसी किसी पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया है, तो आप उस घर को नहीं ले सकते। अगर ऐसा कोई घर जिसे आपने सेकंड में बाय किया है या आपने नॉर्मली लिया है, तो फिर आप ऐसी पॉलिसीज में जरूर अपना घर ले सकते हैं। लेकिन मेन मोटिव जो है उनका यही है कि हर परिवार को एक घर मिले, ना कि एक परिवार तो मल्टीपल घर लेके बैठा हो और एक कई फैमिलीज ऐसी हो जिनके पास एक भी घर ना हो। तो मेन मोटिव यही है कि हर परिवार को एक घर मिले। Right. Tina, if you have not availed of any government subsidy or any subsidized house from a government policy, then you can avail of a PMAY house in a different city. But otherwise, if you've already availed of a government subsidy, you will not get another subsidy because the government clearly wants the first-time home buyers to start buying. प्रमोद गुड़गांव से पूछते हैं, how can the government play a pivotal role in pushing the real estate market by promoting affordable housing in India? गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए, हरियाणा में तो अगर हम बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज पूरे के पूरे देश में हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, मैंने जैसे बताया आपको कि एक मॉडल पॉलिसी बन चुकी है। तो सबसे बड़ा जो रोल है वो गवर्नमेंट का इसमें ये रहा है कि उन्हें से ईज आउट किया है, कुछ एफएआर नॉर्म्स को रिलैक्स किया है, कुछ ऐसी कंडीशंस इसके अंदर की हैं जिसमें आप ईडीसी आईडीसी की जो नॉर्म्स है, जिससे जो टैक्सेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है उसने काफी एग्रेसिव कॉल लिया है इसके अंदर, जिससे लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग को बनाने के लिए हम सक्षम हो पाए। राइट। धीरेन पूछते हैं कि बाकी प्रीमियम हाउसिंग के लॉन्चेस बहुत कम हो गए हैं, आपको लगता है अगले 1 से 2 साल में अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्चेस भी कम हो जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वही इस रियल एस्टेट मार्केट को ड्राइव करने वाला है। अगले 10 साल के अंदर अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करूं तो उसका जो मार्केट जो शेयर है वो लगभग 80% के नियर अबाउट हो जाएगा, और जो प्रीमियम हाउसिंग है वो 20% पे ही सिमट के रह जाएगी। तो जो आने वाला जो एक 10 साल का मुझे जो टाइम लग रहा है उसके लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो बहुत ज्यादा एक सनशाइन कर रहा है, और प्रीमियम हाउसिंग मुझे लगता है कि अभी शायद ट्रबल में ही रहने वाली अगले 2-3 साल। Right. लीना हैदराबाद से पूछती हैं, can you expect higher returns if you invest in an affordable housing project? Actually, Leena, one thing we would like to make clear that affordable housing is not for investment. Affordable housing is so that every Indian gets a house. So if you're looking at it as an investment option, you will be running the same risk that we did when regular housing, investors came and cleared the pitch and found that the end user could not buy. So please look at affordable housing as a project that is for the end user, for the people who could not otherwise buy, and that is why the government has subsidized. Pradeep ji, aapke views? Yeah, you're right, जयश्री। एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट का बिल्कुल सिंपल एक ही वे है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों को घर मुहैया कराएं। इट्स नॉट ए ट्रेडेबल कमोडिटी कि आप उसे ले और उसके अंदर प्रॉफिट कमा के उसे बेच सकें। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल सिंपल फंडा है। जैसे हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को भी देखें तो उसमें उन्होंने एक लॉक इन किया है
कि आप जब भी आपको पोजीशन मिलेगा तो पोजीशन प्लस 1 ईयर तक आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन से कि लगभग 5 साल तक आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। हाँ, अगर आपके पास आपका घर नहीं है या आप कहीं ऐसे घर में रहते हैं जो ऑलरेडी आपके पुराना मकान, आपके पास पुराने आपके जो पेरेंट्स रहे हैं उनका मकान है और तब आप एलिजिबल हैं उस मकान को लेने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को, तो मुझे लगता है कि एज ए यानी इन्वेस्टमेंट एंगल भी देखें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट ही ना देखें। ये मान के चले आने वाले टाइम में अगर मुझे कभी इस घर में रहना पड़ा तो मैं इस घर में रह भी पाऊं। राइट। रिया शर्मा नोएडा से पूछती हैं, डू अफोर्डेबल होम्स प्रॉमिस ऑल बेसिक एमिनिटीज? आप एक बार इसे बोल चुके हैं, मगर अगर आप बताएं कि ऐसे 5-6 एमिनिटीज जो आपको लगता है हर अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक सबसे पहले जो मैं आपको इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को समझा देता हूँ। इसमें लगभग 50% ग्रीन एरिया है। जो बिल्डिंग है वो 50% एरिया पे ही बनती है, तो 50% इसमें ग्रीन एरिया है। इसमें जॉगिंग पार्क है, इसमें एमपी थिएटर है, इसमें क्रैच है, इसमें कम्युनिटी हॉल है। तो इस टाइप की कुछ फैसिलिटीज हैं जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की गई है। और सबसे बड़ी बात तो जो स्टैंडर्ड एक लिविंग ऑफ लाइफ जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। इसमें अगर हम लग्जरी से डिफरेंस करें तो इसमें क्लब या स्विमिंग पूल जरूर नहीं है, इसके अलावा वो सारी फैसिलिटीज हैं जो नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग के अंदर, जैसे वाटर पावर बैकअप हुआ, सेफ्टी सिक्योरिटी, all facilities are there. Right. Deepa from Gurgaon says, is there a difference between the definition of affordable housing by the government and by the industry? कोई फर्क है? I don't think so. केवल एक ही पॉलिसी है जिसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट की सिंगल पॉलिसी है, और अदर देन स्टेट्स की भी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी डिफरेंट है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो सेंट्रल ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अफोर्डेबल किसे कहा जाए, तो मेट्रो सिटीज में इस जो 30 मीटर से जो नीचे के मकान हैं और अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 30 मीटर के अंदर है तो उसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जाएगा, और अगर मेट्रो सिटीज से बाहर है तो जो अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 60 मीटर से नीचे के मकान है तब उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जाएगा। ये एक सिंपल क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया है इसका। राइट। प्रदीप जी, नरेश पूछते हैं, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में विच इज द बेटर प्लेस टू बाय एन अफोर्डेबल प्रॉपर्टी? कंज्यूमर कैसे चूज करे? ऑफ कोर्स गुड़गांव। आई थिंक गुड़गांव में जो पोटेंशियल है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी एक सेल्फ डिमांड है वहां पे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी ग्रेटर नोएडा या नोएडा के कंपैरिजन में देखना चाहता है तो हरियाणा गुड़गांव इज द फार बेटर। There is Mahesh from Bangalore who says, I'm buying a flat worth rupees 60 lakh. Will this purchase fall in the affordable price segment? देखिए, लैंड का किसी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी से कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ कंसर्न की लैंड कहाँ पे है ये डिपेंड करता है। अगर वो फिर जैसे आपने कहा वो अगर आउटकट्स में है, शहर से ज्यादा दूर है, तो उस अफोर्डेबल हाउस का कोई मीनिंग नहीं रहा या उस लैंड का भी कोई मीनिंग नहीं रहा। मेन है कि अगर मेन बैंगलोर की अगर बात कर रहे हैं तो बैंगलोर जैसे एरिया में अगर उनको अफोर्डेबल हाउसिंग 3000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर या उससे नीचे पे मिल पाती है, इट मीन्स अफोर्डेबल हाउसिंग, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। नहीं, आई थिंक ही इज सेइंग ये 60 लाख का मकान खरीदना चाहते हैं। अच्छा, 60 लाख का मकान ये अफोर्डेबल आएगा? सॉरी, बैंगलोर में 60 लाख का मकान? हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक सो 60 लाख में तो वहां पे कोई भी प्रीमियम हाउसिंग इनको मिल जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो जो प्राइस रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा 30-35 लाख रुपए के बीच में है। तो आई थिंक मेरे लिए मुझे लगता है कि 60 लाख रुपए इनका बजट अच्छा है, तो आई थिंक किसी भी प्रीमियम हाउसिंग में जा सकते हैं। Right, and remember that when you buy in this budget, it is the CLSS, the construction linked, the credit linked subsidy scheme that you have, that for MIG2 you may be eligible if you have a salary of 18 up to 18 lakh. So you must, there are many many criteria for affordable homes. One is that you must have the right salary bracket. The
second is that you must have the right sizes, and the third is that the project must be registered under the PMAY. These are all various criteria, and it is explained out in the Housing for All website of the Government of India. So you should be looking at that, and also, like Pradeep ji said, look at the state government policies as well, because state to state there will be variations, because land is a state subject. I think, Neha, I think we've run out of time. And Yes. Pradeep ji, thank you so much for joining us and giving us so many insightful answers. Thank you. Thank you. Thank you, Neha. Thank you. Thank you. With that, I'd like to thank you for participating in this webinar session. Keep posting your queries at the Magicbricks Real Estate Forum and get it answered by experts. The forum address is www.magicbricks.com/forum. You may also write to us at editor@magicbricks.com. Thank you all. Thanks, Neha. Thank you. Have a great day. Thank you.